Hello students, we have done yesterday present perfect continuous affirmative and negative sentences. Today we will do interrogative sentences. I have already told you the whole concept of present perfect continuous. There is no much difference in the interrogative sentences also. Just let's see its rules. First we take a word from a WH family, then use has or have as a helping verb. Yes, but here we need to remember one thing, that we have to be careful for the position of not and been. In the previous type of sentences, we use has been, have been together in the rule, but here in interrogative sentences we need to be very careful for the position of has been and have been, because here in this we use been after subject after not, and here we use not only if we required it. Alright, so let's see. First we take a word from a WH family, then has or have. As I have already told you yesterday that we use has for third person singular subject and have for rest of the subjects. Then subject, then we take here not. I have put it in the bracket because if in the question we require not, only then we will use not. If there is no requirement of not, we will not use it. Then been, verb's first form plus ing, then object plus since or for. Let me remind you again that we use since for which time, for what type of time? Yes, we will use since for particular point of time, and we use for duration of time. Correct? Then we will write time and then question mark. Don't forget this. Alright? Next, now apply rules to the examples. First example is here. Where has Sonika been walking for 2 hours? सोनिका 2 आवर्स से कहाँ घूम रही है? सोनिका 2 घंटे से कहाँ वॉक कर रही है? तो कहाँ हमने पूछा, कहाँ कर रही है, तो उसके लिए हम पता है क्या यूज करते हैं WH फैमिली से, वेयर. तो हमने वेयर यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है अकॉर्डिंग टू द रूल. देन हमने हैज या हैव यूज करना था. अब हम देखेंगे हैज या हैव हम किसके अकॉर्डिंग लेते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. अब हम देखेंगे आगे सब्जेक्ट कौन सा है? सोनिका. यस, यू टेल मी, सोनिका कौन सा सब्जेक्ट है? फर्स्ट पर्सन? No. Second? No. Third person? Yes. Sonika is a third person. But tell me, is it plural or singular? Yes, it is singular subject. तो हमने अभी लास्ट अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा ही था कि हम हैज वहां यूज करते हैं, और मैंने अभी बताया भी था जहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो. तो सोनिका यहाँ पे, सोनिका इज हियर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी टेक हैज हियर एज अ हेल्पिंग वर्ब. देन according to the rule been, okay, then walking, घूमने की या walk करने की English walk, and we have added ing in verb's first form, that is walking. Then we take time, क्योंकि यहाँ पे 2 hours क्या है, time क्या है, duration of hours है ना, कि कितने घंटे हमने सोनिका ने walk किया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे for का use किया है. Correct? Now next example. Since when has he been playing? वो कब से खेल रहा है? Now let's see. In this question हम ये पूछ रहे हैं कि वो कब से खेल रहा है. यहाँ पे हमने टाइम मेंशन नहीं किया है कि वो 1 बजे से खेल रहा है, 2 बजे से खेल रहा है, या मॉर्निंग से खेल रहा है, या इतने दिन से खेल रहा है, ठीक है, या इतने घंटे हो गए उसे खेलते हुए. हमने यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं किया है, हमने यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि वो कब से खेल रहा है. इसलिए हमने जब WH फैमिली का वर्ड लेंगे तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे सिंस व्हेन का यूज करेंगे. सी, सिंस व्हेन एज अ WH फैमिली वर्ड. देन हैज अकॉर्डिंग टू द रूल, बिकॉज ही सब्जेक्ट कैसा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट. देन अकॉर्डिंग टू द रूल बीइंग, एंड देन प्लेइंग, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, दैट इज प्लेइंग. आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, हमने ये नहीं पूछा कि वो कब से
वो वाला गेम खेल रहा है, सपोज मैं बोलती हूँ कि वो कब से लूडो खेल रहा है, वो कब से वीडियो गेम खेल रहा है, अगर मैं बोलती ऐसा कुछ तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट में वो लिख लेते हैं कि कौन सा गेम खेल रहा है, करेक्ट। देन अभी मैंने कहा कि टाइम का तो यहाँ यूज ही नहीं हुआ है, टाइम ये तो नहीं बताया ना कि स्पेसिफिकली इतने बजे से खेल रहा है या इतनी देर हो गई खेलते हुए, इसलिए हमने ना तो सिंस फॉर का यूज किया है यहाँ पे, ना ही टाइम का यूज किया है। बट ये पूछा है कि वो कब से खेल रहा है, और कब से के लिए इंग्लिश में क्या आता है, सिंस। तो हमने क्वेश्चन में WH फैमिली के से जो वर्ड लिया है स्टार्टिंग में, वो सिंस व्हेन लिया है। ऑलराइट, हैव यू नॉट बीन प्लेइंग वीडियो गेम फॉर 2 आवर्स? क्या तुम 2 घंटे से वीडियो गेम नहीं खेल रहे हो? ऐसे कभी कभी आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर पूछ लेते होंगे ना, या मामा पूछ लेती हैं कि तुम 2 घंटे से गेम नहीं खेल रहे हो। तो इस केस में अब आपको एक याद कर रहा हूं अपना कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस में। जब हम ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनके आंसर्स यस और नो फॉर्म में आ सकते हैं, तो उसमें हम WH फैमिली के वर्ड का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब। यस, तो यहाँ पे यस और नो फॉर्म में आंसर आ सकता है, तो WH फैमिली का वर्ड का हमने यूज नहीं किया, देन डायरेक्टली हमने हैज या हैव लिया है। सी, हमने हैव लिया है। अब पूछो कि हैव क्यों लिया मैम, हैज क्यों नहीं लिया? यस, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका क्या है, सेकंड पर्सन है, दैट इज यू, तो इसलिए हमने हैव लिया है अकॉर्डिंग टू द रूल एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द previous video. Then not, yes, we need it here, then only we consider it, otherwise not. Then been as according to the rule, then playing verb first form plus ing, and object is video game here, correct. Then for का use किया है, क्यों? क्योंकि for हमें क्या represent कर रहा है, 2 hours. 2 hours means period of time हमें ये बता रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे for का use किया है. Then question mark, correct. I hope it is very clear to you. Now note it down in your fair notebooks, and then we'll move to past perfect continuous tense. Students, we have done present perfect continuous tense. Now we will continue with past perfect continuous tense. I have already told you the whole concept of perfect continuous tense is in past perfect continuous also it is everything is same. Use of for, since, and where to use had been, have been. I've told you, it's just the change of the tense, nothing else. Rules are same, almost same, not all the rules are not same, but yes, almost same. Now let's see here the difference is there in the present perfect continuous we say that main verb ends with rahe, hai, rahe, raha hai, but here in the past perfect continuous tense the difference is the main verb ends with raha tha, rahe the, एक्सेट्रा, जहाँ पे हम कंटिन्यू तो करेंगे कुछ वर्क, हमने पास्ट में कुछ काम कंटिन्यू किया लेकिन कुछ टाइम के लिए किया, बट वो काम हमने किया था लेकिन कुछ देर के लिए भी किया था तो कॉन्टिन्यूस हो गया, बट हम वो कुछ टाइम से कर रहे थे, जैसे मॉर्निंग से कर रहे थे, या हमने वो काम कई सालों से कर रहे थे, या कुछ महीनों से, या कुछ दिनों से, या कुछ घंटों से कर रहे थे। तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे किस टाइप की कैटेगरी में आएंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आएंगे। सी, एग्जांपल लेते हैं, बंटी 3 घंटे से मूवी देख रहा था, बंटी 3 घंटे से मूवी देख रहा था, तो आ गया ना यहाँ पे, हमने कहा कि 3 घंटे से, ये मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस सेशन में, कि हमने टाइम का जब यूज होता है कि कितने बजे से हमने कोई काम किया है, तो उसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कैटेगराइज करते हैं। एंड हियर 3 आवर्स से, अब बताओ ये क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम बता रहे कि कितने घंटे से उसने ये काम किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंस आएगा या फॉर आएगा? यस, फॉर का यूज करेंगे हम यहाँ पे, करेक्ट। देख रहा था तो इसे पता चल गया कि ये पास्ट का सेंटेंस है। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो दोनों सुबह से तुम्हारा वेट कर रहे थे, वो दोनों सुबह से तुम्हारा वेट कर रहे थे, तो इसमें भी ये आ गया। अब देखो रहे थे आ गया तो पता चल गया आपको कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, सेंटेंस है। बट हियर जब टाइम आ गया कि वो सुबह से वेट कर रहे थे आपका, मॉर्निंग से, तो ये पता चल गया ना कि वो कितनी देर से, टाइम का यूज यहाँ पे हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ क्या कंसीडर करेंगे। अब बताओ ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है या फिर आपका पर्टिकुलर टाइम बताया है कि सुबह से कर रहे हैं, यस, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, सिंस का यूज होगा, क्योंकि आपको बता दिया गया है कब से वेट कर रहे थे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, वो 2014 से यहाँ जॉब कर रहा था। अब सपोज मैं किसी से बात कर रही हूँ, या हम कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं कि वो यहाँ पे 2014 से जॉब कर रहा था, अब चला गया, ऐसे
डिस्कशन चल रहा था। तो ऐसे सेंटेंस में भी यहाँ पे यही आएगा कि वो 2014 से यहाँ जॉब कर रहा था, तो टाइम का यूज आ गया। अब देखो ये पर्टिकुलर ईयर बता दिया है हमने, ठीक है, पर्टिकुलर ईयर बता दिया है कि कौन से ईयर से वो जॉब कर रहा था जब उसने ज्वाइनिंग की थी। तो ये किस यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। करेक्ट, आगे समझ में आपको? इसको नोट डाउन करो और उसके बाद हम इसके रूल्स की तरफ चलते हैं। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द रूल्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस आल्सो few minutes before. So now let's see its rules. What are the rules for affirmative sentences? Here first we take a word that is subject, then had been. Yes, only the difference in the this type of tense and the previous one is had been. There we have used has been or have been, but here in this past perfect continuous tense we have used had been, and rest of the things are same, like verbs first form plus ing, then object, then for or since, and then time. It's same as before, just the difference of helping verb here, had been. Now let's see its examples. He had been living here since 2000. सपोज हम किसी को बता रहे हैं कि वो यहाँ पे 2000 से रह रहा था, वो यहाँ पे 2000 से रह रहा था, तो वो रह रहा था आपने कंसिडर कर लिया होगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, एंड देन कब से रह रहा था, 2000 से रह रहा था। तो अब आप ये मतलब इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि 2000 से रह रहा था, तो ये पर्टिकुलर टाइम दे दिया गया है या पर्टिकुलर आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम है? यस, पर्टिकुलर टाइम है, पर्टिकुलर ईयर दे दिया है कि कौन से सन से, कौन से ईयर से रह रहा था वो यहाँ पे। तो इसलिए हमने इसको इसमें सिंस का यूज किया है क्योंकि पर्टिकुलर टाइम दे दिया है। लेट्स सी, सब्जेक्ट क्या है? ही। यस, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, हैड बीन ही यूज करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, whether it is singular subject or plural subject, first person, second person, third person, there's no change in the helping verb, always we use here had been. Then living, रहने की English live, and here in when we add ing in verb first form, then it comes living. Then here, कहाँ रहने की बात हो रही है? यहाँ पे, तो here is a object. Then since का यूज किया है, अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे 2000 पर्टिकुलर ईयर दे दिया है, इसलिए हमने यहाँ पे since का यूज किया है। Then next example, she had been teaching English. I forgot to write it, but it's here. She had been teaching English for 5 years. वो इंग्लिश पढ़ा पे, वो के लिए इंग्लिश में क्या यूज कर सकते हैं? ही भी यूज कर सकते हैं, शी भी यूज कर सकते हैं। मैंने शी का यूज किया है एज अ सब्जेक्ट। देन हैड बीन, बिकॉज यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हम हैड बीन लेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। देन टीचिंग, पढ़ाने की इंग्लिश आपको पता है, यू नो वेल, टीच, एंड हियर वी ऐड आईएनजी हियर। देन ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इंग्लिश, क्योंकि क्या पढ़ाती हैं वो? इंग्लिश पढ़ाती हैं, और हम ये कह रहे हैं कि वो इंग्लिश पढ़ाती थी या पढ़ा रही थी, वो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ा रही थी, वो 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रही थी, तो यहाँ पे टीचिंग के बाद इंग्लिश आ गया, दैट इज ऑब्जेक्ट। फॉर क्यों आया? क्योंकि 5 years, वो 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रही थी। 5 साल क्या हो गया? ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया ना, पर्टिकुलर टाइम तो नहीं है कि हमने ईयर दे दिया कि उस ईयर से पढ़ा रही है, या फिर कह सकते हैं कि इतने दिनों से पढ़ा रही है, नहीं ना। हाँ, हमने ईयर्स की बात कर दी कि इतने सालों से पढ़ा रही है, तो इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल, they had been struggling since 10 years. वो 10 साल से स्ट्रगल कर रहे थे। जैसे कहते हैं ना कि हम बड़े लोग जैसे बात करते हैं किसी के बारे में कि वो इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे थे, अब जाके उनको अपना गोल अचीव हुआ है या अपनी अचीवमेंट मिली है, कुछ उन्होंने अवार्ड या रिवॉर्ड अचीव किया है, तो ऐसे कह रहे हैं they had been struggling since 10 years. वो 10 सालों से स्ट्रगल कर रहे थे। तो दे, क्योंकि प्लूरल है, बहुत सारे लोग हैं या 2 जनों की बात कर रहे हैं, तो इसमें दे का यूज कर लिया हमने यहाँ पे। देन हैड बीन, इससे फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट प्लूरल हो सिंगुलर हो, यहाँ पे हैड बीन का ही यूज होगा। देन स्ट्रगलिंग, स्ट्रगल इज द वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड हियर वी ऐड आईएनजी। देन ऑब्जेक्ट की कुछ इसमें नीड नहीं है, इसलिए हमने लिया नहीं है। देन हमने सिंस का यूज किया है। क्यों? क्या सिंस करेक्ट है यहाँ पे? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज ये आपको पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया है, ये आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया है कि 10 सालों से वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का यूज किया है। एंड देन टाइम, अकॉर्डिंग टू द रूल 10 years,
I hope it is clear to you. Note it down, then we will move forward. Have done affirmative sentences. Now we see rules for negative sentences. And you already know there's not much difference in the rules, but the difference of the word is not. Only we consider not here. Rest all the things are same. Now let's see. Subject plus had not been. Just remember this thing. Had not been. Not is placed between had and been. Rest of the things are same. That verb's first form plus ing, then object, then for or since, then time. See examples. I have taken the same examples. He had not been living here since 2000. वो यहाँ पे 2000 से नहीं रह रहा था. अब मैं मना कर रही हूँ कि वो यहाँ पे 2000 से नहीं रह रहा था, तो हमने सिंपल ही लिया एज अ सब्जेक्ट. हैड नॉट बीन सेम कंसिडर करेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे, तो हमने ये कंसिडर किया है. देन लिविंग रहने की इंग्लिश, देन हेयर क्योंकि यहाँ की बात हो रही है. सिंस 2000 क्यों लिया अभी आपको मैंने बताया ही है, क्योंकि ये पर्टिकुलर ईयर दिया हुआ है, इसलिए हमने सिंस का यूज किया. नेक्स्ट एग्जांपल. शी हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years. वो 5 साल से इंग्लिश नहीं पढ़ा रही थी. वो 5 सालों से इंग्लिश नहीं पढ़ा रही थी. तो यहाँ पे शी हैड नॉट बीन क्यों, क्योंकि हमने नेगेटिव सेंटेंस लिया है, इसलिए हमने हैड नॉट बीन का यूज किया है. पढ़ाने की इंग्लिश वर्ब क्या है यहाँ पे टीच प्लस आईएनजी टीचिंग. ऑब्जेक्ट इंग्लिश, कब से बात हो रही है पढ़ाने की 5 years, एंड 5 years इज अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पर्टिकुलर टाइम नहीं है, तो इसलिए हमने फॉर का यूज किया है. नेक्स्ट एग्जांपल. दे हैड नॉट बीन डूइंग जॉब हेयर सिंस 1999. हम बता रहे हैं कि वो यहाँ पे 1999 से जॉब नहीं कर रहे थे, मतलब हमने पर्टिकुलर ईयर दे दिया है कि नहीं वो यहाँ पे 1999 से जॉब नहीं कर रहे थे, तो इसलिए सिंस का यूज किया है. दे क्यों लिया है हमने, क्योंकि हम तो एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं. हैड नॉट बीन क्योंकि हमने यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस के देखा है कि सिर्फ नॉट का डिफरेंस है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम. देन डूइंग. अब आप कहेंगे कि मैम डूइंग क्यों लिया है हमने. यस, क्योंकि डूइंग काम करने की इंग्लिश डू बोलते हैं, डू होती है. देन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या ऐड करते हैं, आईएनजी, सो इट्स हियर डूइंग. देन जॉब ऑब्जेक्ट है क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं, जॉब करने की. कहाँ पे, यहाँ पे, तो हियर. देन सिंस क्यों लिया है, यस बिकॉज 1999 इज अ पर्टिकुलर ईयर हियर, तो एक पर्टिकुलर ईयर दे दिया है कि वो 1999 से यहाँ जॉब नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने उसके लिए सिंस कंसिडर किया है. I hope you have done this. Now just write it down in your notebook, then we'll move forward with the interrogative sentences. Now rules for interrogative sentences. You already know what are interrogative sentences. The sentences in which we ask questions. See its rules. We take a word from WH family. Then we use had as a helping verb here because it is a category of past perfect. Then subject, then not, then been. See here, just be careful with the position of had not been because it is split here. Had is used after WH family word, then we use subject, then we take not, and after that we will take be. Correct? Then verb's first form plus ing, then object, then we take for or since, and then time, then question mark. Let's see its examples. What had you been learning for 2 hours? तुम 2 घंटे से क्या लर्न कर रहे थे? What had you been learning for 2 hours? तुम 2 घंटे से क्या लर्न कर रहे थे? सपोज एक स्टूडेंट या चाइल्ड घर पे पढ़ रहा है एंड बहुत देर हो गई, मम्मा ने पूछा कि तुम 2 घंटे से क्या लर्न कर रहे थे या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे थे. तो पूछा है कि क्या लर्न कर रहे थे, तो इसलिए हमने व्हाट का कंसिडर किया है. एंड देन हैड यू बीन एज अकॉर्डिंग टू द रूल, और यहाँ पे मैंने बताया ही है बिकॉज इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट विच इज इट मे बी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, वी ऑलवेज यूज हियर हैड बीन. So what, a word from WH family, had, you as a subject, then been, learning, verb first form plus ing, then for, object है नहीं यहाँ पे, ठीक है, for 2 hours. 2 hours के साथ for क्यों यूज किया है, because 2 hours is a period of time, तो इसलिए हमने for का यूज किया है. Next,
Where had she been teaching eco since 2015? वो 2015 से इकोनॉमिक्स कहाँ पढ़ा रही थी? अब हम पूछ रहे हैं किसी टीचर के बारे में कि मैम या वहां पे 2015 से कहाँ पे, मतलब किसने क्वेश्चन पूछा कि वो 2015 से इकोनॉमिक्स कहाँ पढ़ा रही थी। तो इको मतलब एनवायरमेंट नहीं है, ये आपको 9th स्टैंडर्ड में पता चलेगा। एक सब्जेक्ट होता है, सोशल स्टडीज का पार्ट होता है इकोनॉमिक्स, तो उसकी बात हो रही है। वेयर एज अ सब्जेक्ट हियर, नॉट अ सब्जेक्ट, अ वर्ड फ्रॉम अ डब्ल्यूएच फैमिली, क्योंकि हमने पूछा है कि कहाँ पढ़ा रही थी, तो कहाँ के लिए इंग्लिश वेयर होती है। देन हैड, शी एज अ सब्जेक्ट, बीइंग, देन टीचिंग, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इको, इकोनॉमिक्स। देन सिंस 2015, क्यों लिया सिंस 2015? सिंस क्यों लिया हमने? क्योंकि 2015 क्या है, पर्टिकुलर ईयर है। अब हमने बताया था when we have a particular year and or a particular time, so we use since. Next, why had he not been teaching you for 1 month या for a month? यहाँ पे हम वन की जगह अ भी कंसिडर कर सकते हैं, ए, तो आप उसके लिए भी फॉर ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि एक मंथ की बात हो गई, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो गई है। पर्टिकुलर ईयर या पर्टिकुलर मंथ नहीं दिया है, जस्ट अ टाइम दिया है कि कितने महीने से नहीं पढ़ा रही थी वो तुमको, एक महीने से क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो वाई, क्यों की इंग्लिश आपको पता है, वाई, देन यूज हैड हियर, देन ही एज अ सब्जेक्ट, देन नॉट आफ्टर सब्जेक्ट। बी केयरफुल विद दिस, कहाँ पे हमें नॉट यूज करना है आफ्टर सब्जेक्ट, करेक्ट। Then been, verbs first form, after that object क्या है यहाँ पे, you, क्योंकि किसकी बात हो रही है, उनकी, थर्ड पर्सन की, कि वो क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, किसको पढ़ाने की बात हो रही है, तुमको, तो वो सेकंड पर्सन, लेकिन वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंसिडर होगा क्योंकि इन्फ्लुएंस किस पे पड़ रहा है, तुम पे, दैट इज यू पे, इसलिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या कंसिडर किया है, यू। देन फॉर अ मंथ, अभी बताया, क्योंकि अ मंथ या 1 मंथ आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का यूज किया है। So I hope it is clear to you. If you have any doubts, any query, you can ask me. And just we have done for today, and we are just left with the last part of the tense. And after that, we will start our textbook, that is Midnight Oil. Then wait for my next video. Till then, bye bye and take care.